السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سبق ہے اب اس کو چاہے آپ کہہ لیجئے، بظاہر تو اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ جس طریقے سے عام بول چال میں روزمرہ میں ہم بہت سارے ایسے ایکسپریشنس استعمال کرتے ہیں جس کے بظاہر کوئی معنی نہیں ہوتے، اپنی بات کو ہاں کہنے کے لیے اور نہ کہنے کے لیے کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے جب آپ کسی چیز سے پریشان تنگ ہو رہے ہوں یا پھر انوائے ہو رہے ہوں کہیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بظاہر اس کے کوئی میننگ نہیں ہے، یہ ایک ایکسپریشن ہے۔ یہ سبق مرزا فرحت اللہ بیگ کے مجموعے سے لیا گیا ہے۔ سبق کی پڑھائی کر لیتے ہیں۔ طالب علموں کو دیکھو تو ان کا زور سب سے زیادہ انہی میں پاؤ گے۔ سال بھر کھیل کود میں گزار دیا، امتحان کا خیال آیا تو کر دی، یعنی کہ دیکھی جائے گی پڑھائی، دیکھ لیں گے، یعنی کل سے پڑھیں گے۔ آخر یہ یہاں تک کھینچی کہ امتحان آ گیا۔ سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتا رہا ہوتا ہے، سبھی طالب علموں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آج کی پڑھائی کو کل پر رکھ چھوڑتے ہیں کہ کل کر لیں گے، اور پھر یہ اتنی لمبی کھینچتی ہے کہ دیکھی جائے گی کہ امتحانات کا وقت جو ہے وہ سر پر آ کھڑا ہوتا ہے۔ فیل ہو گئے، اس فیل ہونے پر بھی کر دی، یعنی اس پر بھی کان نہیں دھرے اور عقل نہیں کی، اور اس پر بھی کہہ دیا کہ کیا ہے، دیکھی جائے گی، کیا ہی ہو گیا ہے ایسا۔ یہ بہت ہی بامعنی ہوتی ہے۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ باپ زندہ ہے، کھانے پینے اور اڑانے کو مفت ملتا ہے۔ اب یہ طالب علموں کی سوچ کی عکاسی کرنے کی کوشش کی ہے مصنف نے کہ اس کے کافی زیادہ معنی ہو سکتے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پڑھائی کر کے کیا کرنا ہے، کھانے پینے کو مل رہا ہے، والد صاحب حیات ہیں، تمام خواہشات پوری ہو رہی ہیں، پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پڑھ لکھ کر کیا ہی کر لینا ہے، اتنی کوئی اہم چیز تو نہیں ہے پڑھائی۔ پڑھائی کرنے کی معاملہ آیا تو بھی کر دی، اور جب رزلٹ میں فیل ہو گئے تو بھی کر دی، کیا ہی فرق پڑ گیا۔ یعنی پڑھائی تو تب ضروری ہو جب ہمارے پاس کھانے پینے کی کمی ہو، ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں۔ اب جب ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں اور کھانے پینے کو بھی مل رہا ہے تو پڑھائی کر کے آگے ہم نے کون سا افسر لگ جانا ہے۔ تو یہ ایک ریزن دیا اسٹوڈنٹس کی طرف سے مصنف نے کہ والد صاحب حیات ہیں، اگر وہ بھی مر گئے تو جائیداد موجود ہے، قرضہ دینے کو ساہوکار تیار ہیں، پھر پڑھ لکھ کر اپنا وقت کیوں ضائع کریں۔ یعنی اگر والد صاحب حیات ہیں ابھی تو ضروریات پوری کر رہے ہیں، اور جب حیات نہ رہیں گے تو وہ جائیداد چھوڑ جائیں گے، ان کی جائیداد پہ زندہ رہیں گے۔ تو جن کو کھانے پینے کو نہ مل رہا ہو، جن کی ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں، جن کے سر پر والد صاحب کا سایہ نہ ہو، وہ پڑھائی کریں، اور جن کے والد صاحب جائیدادیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو تو قطعاً پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جب پیسے کی اشد ضرورت پڑے گی بھی تو ساہوکار جو ہیں وہ قرضہ دینے کو تیار ہیں۔ ساہوکار کہتے ہیں تاجروں کو اور مالدار سرمایہ کاروں کو جو کہ سود پر قرضہ دیتے ہیں، یعنی آپ ان سے قرضہ لیں اور وہ سود کے ذریعے کماتے ہیں۔ پھر پڑھ لکھ کر اپنا وقت کیوں ضائع کریں۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، صرف 18 برس ہی کی تو ہے۔ اگر مڈل کے امتحان میں 2-4 دفعہ فیل ہو چکے ہیں تو کیا حرج ہے۔ مڈل کہتے ہیں 8 تک کے اسٹینڈرڈ کو، یعنی 8ویں جماعت تک کو مڈل کہا جاتا ہے، پھر 2 سال اور آپ اس کے اندر اضافہ کر دیں تو وہ میٹرک کی آپ کی سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 18 برس کی عمر ہے، مڈل یعنی 8 جماعتوں تک پڑھتے پڑھتے 2-4 دفعہ فیل ہو جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پڑھائی میں اپنا کیوں وقت ضائع کریں، ہماری بھی عمر ہی کیا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ پڑھائی کو بہت بوجھ سمجھتے ہیں، انہیں لگتا ہے ان کے اوپر انتہائی کوئی ظلم ہو رہا ہے کہ صبح اٹھیں اور اتنی کتابیں لاد کر اسکول جائیں اور پڑھائی کریں اور ڈسپلن کے ساتھ بیٹھیں، کام مکمل کریں، امتحانات کی تیاری کریں، یہ بہت بڑا ظلم ہے ان کے اوپر۔ تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ظلم تو ہمیں نہیں سہنا ہے، تو وہ پڑھائی کو بوجھ سمجھتے ہوئے اور نوجوانی اور لڑکپن میں جو جوش ہوتا ہے اس کی وجہ سے
अब इतनी अहमियत नहीं देते पढ़ाई को। आगे बढ़ते हैं। 30 साल की उम्र तक भी इंटर पास कर लिया तो सिफारिश के बल पर कहीं ना कहीं चिपक ही जाएंगे, या कम से कम विलायत जाने का कर्ज तो ज़रूर मिल जाएगा, और ज़रा कोशिश की तो बाद में माफ़ हो सकेगा। अब यहाँ मुसन्निफ़ जो है वो मज़ाक़न ये बात कर रहे हैं कि 30 साल की उम्र तक इंटर, क्योंकि इंटर जो होता है वो 12 जमातें होती हैं, और अगर आप 14 नहीं तो 15 साल की उम्र तक भी अगर मैट्रिक कर लें तो 16 या 17 साल की उम्र तक आप इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ वो बात कर रहे हैं कि 18 साल की उम्र तक 8वीं जमात तक फंसे रहें ये, और 30 साल की उम्र में इंटर कहीं पास करें। तो वो मज़ाक़न ये बात कर रहे हैं कि तालिब इल्मों को इतनी कोई फ़िक्र नहीं है कि वो 30 साल की उम्र तक जो है वो अपने लड़कपन और अपना जो है वो जवानी जो है वो एंजॉय करें, और उसके बाद जब कहीं ज़रूरत पड़े तो सिफारिश के बल पर, सिफारिश की वजह से कहीं ना कहीं चिपक जाएं, यानी कि कोई ना कोई तो नौकरी किसी दफ्तर में लग ही जाएंगे। या ये ना हुआ अपने मुल्क में किसी दफ्तर में सिफारिश के बल पर कोई नौकरी कर पाएँ तो कहीं विलायत चले जाएंगे। अब फ़ॉरेन कंट्रीज़ को कहते हैं विलायत। अब कर्ज़ लेंगे और विलायत रवाना हो जाएंगे, और फिर थोड़ी कोशिश करेंगे तो जो कर्ज़ लिया है विलायत जाने के लिए वो माफ़ भी हो ही जाएगा। इस फ़ेल होने पर इधर उन्होंने ऊँ की, यानी स्टूडेंट्स ने, और उधर माँ बाप ने ऊँ की। यानी एक तरफ तालिब इल्मों ने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो दूसरी तरफ माँ बाप ने भी ऊँ कर दिया। इस सूरत में अब्बा और अम्मा की ऊँ का दूसरा मतलब है, यानी ये कि बच्चा भी फ़ेल हुआ है, दिल टूटा हुआ है, ज़रा कुछ कहा तो कहीं ऐसा ना हो कि रो रो कर अपनी जान हलकान कर ले या कहीं जाकर डूब मरे। ग़र्ज़ इस ऊँ ने साहबज़ादे साहब की तालीम का ख़ात्मा बिलखैर कर दिया। यानी तालिब इल्मों ने पढ़ाई को लेकर ऊँ इसलिए कर दिया कि अभी पढ़ाई की ज़रूरत ही क्या है, पढ़ लिख कर क्या ही कर लेना है, अभी हमारी उम्र ही क्या है, तमाम ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, और अपने मुस्तक़बिल के लिए ऐसे मंसूबे बनाए हुए हैं जो न जाने मुमकिनात में से भी है कि नहीं हैं। और जहाँ वालिदैन की बात आई, उन्होंने भी ऊँ कर दिया कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, बच्चा है, और ऐसा ना हो कि हम पूछें तो पहले ही उसका दिल टूटा हुआ है और कहीं कुछ कर ना ले, कहीं और ज़्यादा परेशान ना हो जाए। अब इसी ऊँ ने जो कि दोनों तरफ से हुई, साहबज़ादे की यानी उन साहब की पढ़ाई का ख़ात्मा ही कर दिया। ना पढ़ पाएंगे वो और ना ही कुछ बन पाएंगे। आगे पढ़ाई करते हैं। घर वाली की ऊँ सबसे ख़तरनाक ऊँ होती है। किसी मामा पर ख़फ़ा हो रही हैं, वो बराबर जवाब दिए जाती है, ये ऊँ करके ख़ामोश हो जाती हैं। यानी घर वाली जो बेगम है, वाइफ़, उनकी बात हो रही है कि उनकी ऊँ जो होती है वो सबसे ख़तरनाक होती है। अब यहाँ मुसन्निफ़ जो है वो ऊँ के चैप्टर में ऊँ के मुख्तलिफ़ इक़साम और उनको इस्तेमाल किए जाने के मुख्तलिफ़ औक़ात बता रहे हैं, और उनमें सबसे ख़तरनाक बीवी की ऊँ होती है। किसी मामा पर ख़फ़ा हो रहे हैं यानी किसी काम वाली पर, अब वो बराबर जवाब दिए जा रही है तो बेगम साहिबा जो है वो ऊँ करके ख़ामोश हो जाती हैं। लीजिए, नौकर शेर हो गए, घर का सारा इंतज़ाम दरहम बरहम, खुद इनके इख्तियारात सलब, घर की हुकूमत उनसे छिन मामाओं के हाथ में चली गई। अब ये बात कर रहे हैं कि बेगम साहिबा की और नौकरानी की जो है वो बात चल रही है, अब वो आगे से जवाब दिया जाए और बेगम साहिबा जो है वो ऊँ करके ख़ामोश हो जाएँ। अब मालकिन की ऊँ पर ख़ामोश हो जाने पर नौकर तो हो गए शेर, घर का निज़ाम हो गया दरहम भरहम, क्योंकि नौकरों के हाथ पर अगर आपके घर का निज़ाम आएगा तो फिर तो यही होगा, मालकिन के हाथ में हो तो ही सही तरीके से घर का निज़ाम चलता है। अब जब घर का इंतज़ाम सारा नौकरानियों के हाथ, मामाओं के हाथ आ गया, तो इनके अपने, बेगम साहिबा के अपने इख्तियारात जो हैं वो सलब हो गए, यानी कि ख़त्म हो गए। कोई चीज़ चोरी हो गई, बेगम साहिबा ने इधर उधर ढूंढा, कुछ थोड़ा बहुत गुल मचाया, आखिर ऊँ करके बैठ गई। यानी घर में कुछ चोरी हुई, बेगम साहिबा ने ढूंढा, थोड़ा गुल यानी शोर मचाया, और फिर इधर उधर ढूंढ कर ऊँ करके बैठ गई। अब क्या है, पटारी में से कत्था छालिया गायब, खर्च की संदूकची में से रुपए पैसे गायब, संदूकों में से कपड़े गायब, गर्ज रफ्ता रफ्ता सारे घर का सफाया हो गया। मामा ने कोई रकाबी तोड़ डाली, शिकायत हुई, उन्होंने वही अपनी ऊँ का इस्तेमाल किया।
नतीजा ये हुआ कि थोड़े ही दिनों में अलमारी के पीछे से शीशे और चीनी का इतना टूटा हुआ सामान निकला कि खासे कई संदूक भर जाएं। अब यहाँ मुसन्निफ़ घर की हुकूमत मालकिन से हटकर नौकरानियों के हाथ में आ जाने के बाद के हालात बयान कर रहे हैं कि पिटारी जो कि जिसमें पान बनाने का सामान होता है, जिसमें पान होता है, छालिया, तंबाकू और दूसरी चीज़ें होती हैं, कत्था चूना वगैरह जिससे पान बनाया जाता है उसे पिटारी कहते हैं। उसमें से कत्था गायब होना शुरू हो गया, छालिया गायब होना शुरू हो गई। खर्च की जो संदूकड़ी होती है जिसके अंदर जो है वो पैसे रखे जाते हैं खर्च के लिए रोज़मर्रा के, वहाँ से पैसा गायब होना शुरू। संदूकों में जो कि कपड़े रखे हुए थे वो गायब होना शुरू। गर्ज रफ्ता रफ्ता सारा घर का सफाया हो गया। अब नौकरानी ने कोई रकाबी यानी कोई प्लेट तोड़ी तो शिकायत की गई। अब जब उनसे शिकायत की नौकरानी से कि ये क्यों तोड़ा, तो उन्होंने भी ऊँ कर दिया। अब एक तरफ बेगम साहिबा ऊँ कर रही है तो दूसरी तरफ नौकरानी ने भी ऊँ कर दिया। अब नतीजा क्या निकला कि जो अलमारी थी उसके पीछे शीशे जो कि टूटते रहे थे नौकरानियों के हाथों, और चीनी के जो बर्तन होते हैं वो भी जो टूट टूट कर जमा हो रहे थे, वो अलमारी के पीछे जो है वो उनका एक अंबार से लग गया। इतना अंबार के कई संदूक भर जाएं। वो जितने भी सामान रकाबियाँ और चीनी के बर्तन तोड़े जा रहे थे नौकरानियों की तरफ से, वो अलमारी के पीछे उनको रखा जा रहा था। अब बच्चों ने कोयले से दीवारों पर लकीरें खींची, दीवारों दरवाज़ों पर पेंसिल से कीड़े मकोड़े बनाए। पहले तो ये थोड़ी बहुत बिगड़ी यानी बेगम साहिबा, फिर करके खामोश हो गई यानी यहाँ पर भी क्या ही किया जाए, वो कहकर खामोश हो गई। अब रहे मियाँ, तो उनकी सबसे ज़्यादा तेज़ है। बीवी किसी बात पर बिगड़ी, मियाँ कहकर बाहर चले गए। अब वो कह रहे हैं कि बेगम साहबा की के तो बड़े किस्से बता दिए, लेकिन जो मियाँ साहब है उनकी सबसे ज़्यादा तेज़ होती है कि बीवी किसी बात पर बिगड़ी नहीं और किया और बाहर चले गए। हाँ, ये ज़रूर है कि मियाँ बीवी की ये बाज़ दफ़ा वो काम कर जाती है जो बड़े बड़े अफलातून सुलहकार भी नहीं कर सकते। बीवी को गुस्सा आया, मियाँ ने कर दी, चलो लड़ाई का ख़ात्मा हुआ। मियाँ किसी बात पर बिगड़े, बीवी ने कर दी, मियाँ का गुस्सा ठंडा हो गया। अगर की बजाय जवाब दिया जाता तो मियाँ को घर छोड़ना और बीवी को मैके जाना पड़ता। अब यहाँ इन्होंने बहुत सारी का जहाँ तज़किरा किया, वहाँ मियाँ बीवी की के बारे में एक पॉजिटिव चीज़ बताई है, एक मस्बत चीज़ है कि बाज़ औक़ात जब लड़ाई हो तो बड़े बड़े सुलहकार जो सुलह कराने आए हों मियाँ बीवी के दरमियान, वो भी वो काम नहीं कर सकते जो ये कर जाती है कि मियाँ को गुस्सा है, बीवी करके खामोश हो गई, बीवी को गुस्सा आया, मियाँ करके खामोश हो गया। अब जो काम बड़े बड़े सुलहकार ना कर पाएँ वो ये कर देती है कि वक्ती लड़ाई होती है, वक्ती जोश होता है, थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है और घर जो है वो बच जाता है। मियाँ घर छोड़ने से और बीवी मैके जाने से बच जाती है। हर मामले की दो ही सूरतें हैं, फ़तह या शिकस्त, और दोनों सूरतों में नुकसानदेह साबित होती है। शिकस्त पर जिसने की उसने गोया शिकस्त को शिकस्त ना समझा, जिसने फ़तह पर की उसने गोया अपनी हिम्मत की कदर नहीं की। अब मुसन्निफ़ यहाँ बता रहे हैं कि हर मामले में दो सूरतें होती हैं, या तो इंसान फ़तह याब होता है या फिर उसे शिकस्त होती है। अब दोनों ही सूरतों में या तो आपको किसी मामले में फ़तह हुई हो या शिकस्त हुई हो, करना नुकसानदेह ही होगा। अगर आप शिकस्त पे करें तो यानी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप शिकस्त को शिकस्त ही नहीं गर्दान रहे हैं। और अगर आप फ़तह याब होकर करें तो आप गोया अपनी उस तमाम मेहनत पर पानी फेर रहे हैं जो उस कामयाबी के लिए आपने की थी। ना आपने फ़तह को फ़तह समझा और ना शिकस्त को शिकस्त समझा, आपके लिए दोनों चीज़ें बराबर हैं उस की वजह से। आगे मुसन्निफ़ कहते हैं कि आज नहीं डूबा तो कल डूबेगा। दुनिया में वही लोग कुछ कर सकते हैं जो फ़तह को फ़तह और शिकस्त को शिकस्त समझें। अब रहे वाले जो लापरवाही से शिकस्त और फ़तह को बराबर समझते हैं, उनका बस खुदा ही मालिक है। दुनिया से अगर मिट ना जाएंगे तो कम से कम जूतियाँ हमेशा ज़रूर खाएंगे। यहाँ मुसन्निफ़ यही बात कर रहे हैं कि दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जो फ़तह को फ़तह और शिकस्त को शिकस्त समझते हैं, दोनों को बराबर नहीं गर्दानते। और रहे ये करने वाले तो अल्लाह ही इनका मुहाफ़िज़ है कि फ़तह और शिकस्त को बराबर समझते हैं, और अगर दुनिया से ये ख़त्म ना हो जाएं तो जूते ज़रूर हमेशा खाएंगे। यानी जो है इनको कोई कामयाबी नहीं देगी।